Welcome, dear students. Hope you all are fine. Now, today I am going to discuss the another topic of your philosophy subject, that is Maria Montessori. Maria Montessori. She was basically an Italian doctor, but later she became an eminent educationist. By her great contribution, in fact, she became an eminent educationist. Otherwise, she was basically a doctor. Now, now let us see what sort of contribution she has given to education system, what she has done. Now, let us begin with her contribution. Firstly, let me tell you when she was born. She was born on 1870 in Italy. In fact, she was the first lady upon whom University of Rome conferred the PhD in medicine in 1894. ये पहली एक ऐसी लेडी थी जिसके ऊपर PhD डिग्री निकाली गई, वो भी मेडिसिन में. किस ईयर में? 1894 में. सो इट मीन्स कि इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ से ही हमें पता चलता है कि शी हैव डन फैबुलस जॉब इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. नाउ let us see what she has done. She was basically the doctor, and after doing the degree, she was appointed in the same university which conferred medicine doctorate in medicine in 1894. She was appointed as professor there, but in wait a minute, I'll write here. She was appointed professor in the University of Rome, but in the department of anthropology. University of Rome in anthropology. It means she was appointed in the same university in the department of anthropology. मगर कहाँ से कहाँ तक? From the year 1900 to 1907. It means almost for 7 years she worked there. After that, during this time period, she was appointed as in charge of the psychiatric center. It was the only university where there was the psychiatric center, which was meant for feeble-minded students. You understand feeble-minded students who are at the dull level, जिनमें डलनेस ज़्यादा होती है, जिनके सेंसरी ऑर्गन जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. सो इट मीन्स कि इनका वहाँ पे एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो डील करता था फीबल माइंडेड स्टूडेंट्स के साथ, एंड शी वॉज पुट इन चार्ज on the same department, in charge of she was put in charge of psychiatric center. She was put in charge of psychiatric center of the same university. After dealing with the feeble-minded children, she concludes that feeble-mindedness of children is due to the dullness of their senses. It is obvious. Whenever senses are not working properly, that means we cannot feel anything or we cannot get any sort of knowledge. So it means feeble-mindedness is just because of the dullness of the senses. It means a person who is feeble-minded doesn't work their proper senses, or we can say he cannot or she cannot use the senses properly. So she stated that proper sense training would enable the feeble-minded children to acquire some knowledge. It means we cannot make them educated, or we cannot impart education among feeble-minded. उनके विचारों को वो लेवल नहीं होती है, but at least we can train their senses to get some sort of knowledge. What sort of knowledge? At least they can get the knowledge of their daily life activities, how they can handle their life, how they can tackle the situations, like how to eat, how to handle the things, how to behave. At least we can train their senses in such a way they can at least handle their life somehow.
not fully but somehow. So she worked on it. She does a lot of experiments on it, so that she can give a sort of training to such students. At least that training can benefit such students. So after working a lot, after doing so many experimentations, she finally concluded that there should be the particular system through which we can train their senses, and that system she gave the name, that is Montessori system of education. Here she gave new system in education, popularly named as Montessori system of education. Montessori system of education. What was this Montessori system of education? It was simply a sort of training through which we can train the senses of a feeble-minded students. But what was that system? How we can implement this? It is simple. It is not that much difficult. For that, she started a school in 1907. 1907 In 1907, she opened her own school. She opened her own school, namely Children's House. Children's House. Like Froebel also established two of his renowned institutions. She also opened her own school where she can experiment so many new trainings, where she can experiment with such students, where she can implement the new system of training there. So she opened her own school, namely Children's House. That is the biggest establishment of her career. It was here she implemented the new system of education, namely Montessori system of education. What was that? What she done in the system? So she simply does a system. She developed a technique there. What sort of technique? She simply taught the students without books. She developed a new technique of playway method. That was not common playway because these was the feeble students जो डायरेक्टली खेल नहीं पाते, जो हैंडल नहीं करते हैं चीज़ों को, जिनको समझ नहीं है किसी चीज़ की, उनके साथ हम कॉमन प्लेवे टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते. सो शी डेवलप्ड ए स्पेशल प्लेवे टेक्निक, जिस वजह से एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन होती थी. लाइक व्हाट वाज दैट? वो पहले ये होता था कि बच्चों को कुछ चीज़ें दी जाती थी टू हैंडल, टू होल्ड, क्योंकि इनमें सेंसरी ट्रेनिंग जो थी बहुत ही मस्ट थी. दे वर नॉट एबल टू हैंडल द थिंग. इनफैक्ट उनको पता भी नहीं होता था. आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप में से कोई कोई आया होगा हमारे साथ, व्हेन आई टुक यू टू देयर रिहैबिलिटेशन सेंटर एट बमिना, आप लोगों ने वहाँ पे देखा some of them were not able to handle the things. कुछ लोगों को तो समझ भी नहीं आता था, कुछ लोग तो फील ही नहीं कर पाते थे, कुछ लोग को लिसनिंग प्रॉब्लम थी. सो देयर वर सो मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स, या आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीक़ों के डिसेबिलिटी थी बच्चों में. सो उनको टैकल करना अलग अलग तरीक़ों से. सो यहाँ पे क्या था, कुछ बच्चों को होल्ड करना चीज़ों का ट्रेनिंग होती थी, कुछ लोगों को ईटिंग का ट्रेनिंग दिया जाता था, कुछ लोगों को प्रॉपर सिटिंग, प्रॉपर यूसेज ऑफ बाथरूम, इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती थी. इसका कॉज क्या था? मेनली वाई शी डज दैट, शी सिंपली सेड कि ये लोग एटलीस्ट अपनी लाइफ को कैरी कर सकते हैं अपने आप से ही, विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर पर्सन. सो दे कैन एट लीस्ट हैंडल देयर लाइफ. जो हमारे नेसेसरीज होते हैं, कुछ डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती है, एटलीस्ट अगर हम इनको उस मामले में ट्रेन कर सकते हैं, सो दे कैन लिव देयर लाइफ प्रॉपरली. सो इस वजह से शी डेवलप्ड द स्पेशल प्लेवे टेक्निक फॉर देम. एंड वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन होती थी वेयर एट चिल्ड्रंस हाउस. और वहाँ पे बिल्कुल ही बुक्स को टोटली यूज़ नहीं किया, क्योंकि बुक्स नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं. ऐसे स्टूडेंट्स को बुक देना, उनको सिखाना बुक के थ्रू, दैट इज़ रियली मुझे लगता है इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि उनको पता नहीं है चीज़ों की, उनको समझ नहीं है. सो उनको जितना हम ट्रेनिंग के थ्रू या जितना हम प्रैक्टिकली समझा सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है. सो फिर आफ्टर ऑल देखा गया कि जो इस स्कूल में स्टूडेंट्स थे, दे टू कीन इंटरेस्ट इन एजुकेशन.
जो इन्होंने नए नए मेथड्स अप्लाई किए, जो इन्होंने नई नई टेक्निक्स अप्लाई किए, उस बेसिस पे दे डेवलप्ड द इंटरेस्ट इन एजुकेशन। और ये भी देखा गया सक्सेसफुली बहुत सारे ऐसे फीबल माइंडेड बच्चे थे जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली भी, और बहुत सारे रिमार्क्स आए सोसाइटी में, एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया इन बच्चों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे इन बच्चों को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ा जाता था, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है एक कॉमन पेरेंट के लिए भी, एक कॉमन पीपल के लिए भी हैंडल करना ऐसे बच्चों को, क्योंकि इनकी सेंसेस को ट्रेनिंग करने के लिए वी नीड स्पेशल टेक्निक्स। So she developed such special techniques, how to handle such students and how to train their senses. So overall, she says it is only the senses which are the gateways of knowledge. If we train the senses, at least we can impart some sort of knowledge, not full knowledge but some sort of knowledge जो required है उनकी life के लिए, at least we can impart that. So बिकॉज ऑफ सच न्यू टेक्निक्स जो बहुत सक्सेसफुल हुए, तो 1922 में शी वॉज अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर ऑफ इन्फेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट ने इसका ये कंट्रीब्यूशन देखकर डिसाइड कर लिया 1922 में कि शी शुड बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्ट्रेस ऑफ इन्फेंट स्कूल्स। यानी जो भी कंट्री में इन्फेंट स्कूल्स थे, आई मीन टू से इटली में, उनकी इनको बनाया गया इंस्पेक्ट्रेस। यानी शी वॉज अपॉइंटेड एज इंस्पेक्ट्रेस सो दैट कि वो सारे इन्फेंट स्कूल जो थे, इन्फेंट हम यूजुअली कहते हैं द स्कूल्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस जो बिलो 3 के होते हैं या अप टू 3 यू कैन से, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली किस तरह से हो जाए और किस तरह से उनको एजुकेशन दी जाती है। और इन्होंने उस मामले में भी शी वर्कड अ लॉट टू ट्रेन डिफरेंट टीचर्स, टू ट्रेन डिफरेंट स्कूल टीचर्स कि आप लोग किस तरह से हैंडल कर सकते हो इन्फेंट स्टूडेंट्स को। सो आफ्टर दैट इन 1931, after inspectress, she decided she will move towards the whole world. So what she does, she in 1931 she came to India. She decided that she will train different teachers of young children there. सो फॉर दैट पर्पज़, बिकॉज इंडिया जो था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमी थी इन चीज़ों की। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया था, काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर्स खोले थे, काफ़ी साइकेट्रिक सेंटर्स खोले थे, काफ़ी स्पेशल स्कूल्स ओपन किए थे मारिया मोंटेसरी की हेल्प की वजह से। बट इट वाज इंडिया जो अभी इट वाज लैकिंग बिहाइंड, क्योंकि वो अभी कोई काम नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई मारिया मोंटेसरी डिसाइडेड दैट she will go to India, and in 1931 she came to India just to train the different teachers of young children. So she conducted several training courses for such teachers, बहुत सारे training courses. In fact, she spent almost 20 years there. She remained there till 1951. 20 साल उन्होंने इंडिया में गुजारे टू ट्रेन द टीचर्स ऑफ यंग स्टूडेंट्स, एटलीस्ट प्राइमरी टीचर्स को वो ट्रेन कर सके। सो 20 साल रहने के बाद शी डिसाइडेड टू लेफ्ट इंडिया एंड शी लेफ्ट टू हॉलैंड आफ्टर इंडिया इन 1951। इन द सेम ईयर शी came to Holland just for the same purpose, but unfortunately after a year she died there in Holland. She died on May 1952। एक ही साल उन्होंने हॉलैंड में काम किया सेम पर्पस के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मई में 1952 में शी डाइड इन द सेम प्लेस इन हॉलैंड। सो यहाँ पे इन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया वो बहुत ज़्यादा था। एटलीस्ट एक वर्ल्ड को एक नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन मिला जो था मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एंड व्हाट वाज दैट? इट वाज द सिस्टम विच डील्स विद फीबल माइंडेड स्टूडेंट्स, जो उससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। सो फॉर दिस system of education she gave certain principles. She said if we follow some principles we definitely can give special training to, or we can train such students who are feeble minded. So what principle she recommended? First principle she recommended is that principle of development. Principle of development. What was this? She
completely thinks the like फ्राइबल. जैसे फ्राइबल ने सोचा कि डेवलपमेंट जो है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से नहीं होती है, इट इज़ फ्रॉम विद इन. डेवलपमेंट जो होती है, जो हम में चाहे फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वट एवर इट इज़, तो वो सारी जो है इट हैपन्स विद इन. It's not required any external force. Same was the thinking of Maria Montessori. She was thinking the same. She also believes that the development of a child happened within. There is no requirement of external force. So, what was the role of education there? What should we do according to her? We should aim. We should make an aim of education there, that we should give such type of education that unfolds the individuality of a child, and plus that develops the inner personality of a child. यानी हमें education इस तरह से देनी है which can help to develop the individuality of a child. यानी वी शुड फर्स्ट रेस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड. अगर हमने इंडिविजुअलिटी उसकी डेवलप नहीं की, उसमें एक अलग सा टैलेंट होता है, अंदर अलग कैपेबिलिटी होती है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो ऑब्वियस सी बात है, उसको होने दीजिए डेवलप अकॉर्डिंग टू हिम. अकॉर्डिंग टू हिम जो उसमें खुद का टैलेंट है वो बाहर आएगा खुद ही. अगर हमने उसको अपने हिसाब से चलने दिया तो उसकी डेवलपमेंट बिल्कुल हमारे जैसी हो जाएगी, यानी लिमिटेड हो जाएगी. चूँकि इसका मानना था ये अंदर से ही होती है, खुद ही, ये हमें ज़रूरत नहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स देने की, जिसमें जो डेवलपमेंट होनी होगी वो डायरेक्टली हो जाएगी. तो obvious सी बात है, here we should not interrupt the child's interest, or we should not interrupt we should give him education according to his own needs. So first principle according to her should be the principle of development. We should concentrate on the development of a child. So the next principle she gives, that is principle of individuality. Principle of individuality. यानी we should respect the individuality of a child. Every person is individually different. Every person has own capacities, capabilities. Every person has his own talent. So we cannot compare a child with another child, and we cannot in fact say both are same. Everybody is different from their own point of view. So what we should do, हमें education में इनमें इंडिविजुअलिटी का पहले फ़र्क देखना है. एंड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन वी शुड इम्पार्ट द एजुकेशन. हम इक्वली नहीं दे सकते हैं. सो हेयर शी मेंट that we should respect the individuality of a person, and we should give education according to the needs and demands, or you can say needs and interests of the child. Then she gives another principle, that is principle of freedom. Principle of freedom. What she meant here, यहाँ पे उन्होंने लिटिल बिट कंपेयर किया है फ्रॉइबल के साथ, क्योंकि समहाउ फ्रॉइबल के भी थॉट्स यहाँ पे मिलते जुलते हैं. उन्होंने भी कहा था फ्रीडम होने चाहिए एक बच्चे को, इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए. तो शी सेज दैट वी शुड एट लीस्ट मेक ए चाइल्ड फ्री. इन व्हाट सेंस? एटलीस्ट हमें उनको फ्री करना है उनके थॉट्स के हिसाब से, उनको वो करने देना है वट एवर दे लाइक्स. क्योंकि अगर हमने उनको उनके हिसाब से चलने नहीं दिया, अगर हमने उनको वो फ्रीडम नहीं दी अपनी चॉइस के हिसाब से करने की, अपनी सेल्फ एक्टिविटीज़ नहीं करने दी, सो इट मीन्स कि उनका टैलेंट जो है वो पॉलिश नहीं हो जाएगा, जो उनमें हिडन क्वालिटीज़ है वो बाहर नहीं आएंगी, या जो भी उनमें कैपेबिलिटी है हमें पता नहीं चलेगी. सो इट मीन्स कि देयर इज़ अ कंपल्सरीली we should give freedom to, there is compulsory that we should give freedom to every child to do whatever he likes or whatever he wants to do, so that कि हमें भी पता चल सके उसके needs and desires क्या है. So next principle she gives, that is principle of sense training. I'll write it here. Principle of sense training. This is the fourth principle she gives. ओवरऑल इनकी जो फिलॉसफी है वो डिपेंडेंट है सारी की सारी इसी पे, क्योंकि शी वर्क्स ऑन बेसिकली ऑन सेंस ट्रेनिंग. शी सेज it is only senses through which we can give knowledge to feeble minded students. And she said senses are only the gateways through which we can give knowledge to any person, not only feeble minded, but any person. We can only train them through senses. So what she said here, she said we should work on their senses, like we have to train their sense of
touch, we have to train their sense of hearing, or you can say sense of smelling, or sense of perception. We have to train them accordingly so that they can at least learn uh, sense of touch, sense of hearing और सेंस ऑफ परसेप्शन. क्योंकि फीबल माइंडेड स्टूडेंट्स में मेनली प्रॉब्लम होती है, उनके सेंस जो है फुली वर्किंग नहीं होता है. सो हमें सबसे ज़्यादा काम करना है उनके सेंस ट्रेनिंग पे, उनके सेंसेस पे. वी हैव टू गिव देम ट्रेनिंग, वी हैव टू मेक देयर सेंसेस एटलीस्ट इतने ट्रेन करने हैं कि दे कैन यूज़ देयर सेंसेस प्रॉपरली. क्योंकि उनको प्रॉपर हैंडलिंग नहीं पता होता है, उनको प्रॉपर यूसेज ऑफ सेंसेस नहीं पता होता, उनका सेंस ऑफ हेयरिंग प्रॉपर काम नहीं करता है, सेंस ऑफ टच प्रॉपर काम नहीं करता है. इनफैक्ट उनमें हर एक सेंस जो है वीक होता है. तो हमें वी हैव टू वर्क हेयर, वी हैव टू गिव सच टाइप ऑफ एजुकेशन थ्रू विच वी कैन गिव देम सेंस ट्रेनिंग, और वी कैन train their senses fully. Now, after that, she recommends one more principle, that is principle of muscular training. Muscular training. She said, if we train their senses, उसके साथ साथ वी हैव टू ट्रेन देयर मसल्स एज वेल. अब इसमें क्या ज़रूरी है, अगर हम उनके सेंस ऑफ टच को ट्रेन कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ थिंग्स के लिए वी हैव टू ट्रेन देयर मसल्स एज वेल. क्योंकि सेंस ऑफ टच तब काम करेगा जब उनके मसल्स प्रॉपर काम कर रहे होंगे. इसमें आएगा सेंस ऑफ वेट, लाइक हाउ टू होल्ड ए थिंग. वेट क्या होता है, उसको होल्ड कैसे किया जाता है. क्योंकि अगर आप ऐसे फीबल माइंडेड के हाथ में कोई भी चीज़ दोगे, द पर्सन कैन नॉट कैरी, क्योंकि उसको पता नहीं है हाउ टू होल्ड इट. तो सबसे पहले अगर हमने इनके सेंस को ट्रेन किया, हाउ टू होल्ड द थिंग्स, उसके बाद हमें इनके मसल्स को भी ट्रेन करना है. इनमें परसेप्शन ऑफ साइज भी दिखाना है कि छोटा क्या है, बड़ा क्या है, विड्थ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, हाइट क्या है. सो ओवस सी बात है, जब उनमें ये चीज़ें हम ट्रेन करेंगे, ओवस सी बात है वो आराम से डेली एक्टिविटीज़ में, ओवस सी बात है अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज़ है उन पर ये कूप अप कर सकते हैं, उन पर ये डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं. सो इसीलिए शी रिकमेंडेड कि फर्स्ट वी हैव टू ट्रेन देयर सेंसेस, देन वी हैव टू ट्रेन देयर मसल्स, सो दैट कि दे कैन एटलीस्ट डू देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज. Then this is the last principle she recommended. Then she contributed in the education field. She gives some techniques specially to train the feeble minded students. Here I'll discuss some techniques, as we have only 2G network here, so it is difficult to upload a long lecture जिसमें ज़्यादा ड्यूरेशन होती है. सो आई ट्राई टू मैं मिनिमाइज कर सकूँ इसको. सो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिए हैं. सो इसमें मेन कंट्रीब्यूशन जो था आई हैव डिस्कस्ड विद यू नाउ. इसमें इनका मेन कंट्रीब्यूशन जो है, मारिया मॉन्टेसरीज का कंट्रीब्यूशन जो है, शी गिव्स डिफरेंट स्पेशल टेक्निक्स टू एजुकेशन सिस्टम. कुछ टेक्निक्स उन्होंने दिए विच आई वुड लाइक टू डिलीवर हेयर. वो क्या टेक्निक्स हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी जो है बेसिकली डिपेंडेंट है इसी पे. सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिवाइड किया, इन्होंने कुछ टेक्निक्स दिए कि हमें क्या मेनली ट्रेनिंग देनी चाहिए. उसमें इन्होंने डिवाइड किया 3 ही पार्ट्स में एजुकेशन को. दैट इज़, यू ऑल नो दैट शुड बी रीडिंग, राइटिंग. इन्होंने कहा देयर शुड बी नो प्रॉपर ट्रेनिंग, बट वी शुड ट्रेन अ स्टूडेंट इन दीज 3 फील्ड्स, दैट इज़ रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. Why only these 3 subjects? These 3 things she said, these are important. And why she called these things techniques? क्योंकि she said कि अगर हमने इन 3 चीज़ों में ट्रेन किया एक बच्चे को, चाहे वो feeble minded हो चाहे normal हो, तो वो सारी नॉलेज खुद ब खुद गेन कर सकता है. क्योंकि इन 3 चीज़ों पे पूरी की पूरी नॉलेज जो है डिपेंडेंट होती है, और इन्हीं 3 चीज़ों से हमारे सेंसेस जो है फुली ट्रेन होते हैं ना. अब आप बोलोगे रीडिंग का क्या कंसेप्ट है इसमें, रीडिंग से कैसे हम कर सकते हैं. क्योंकि जब हमने उनको ट्रेन किया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द लेटर्स, या फिर हम उनको ट्रेन करते हैं फॉर फोनेटिक साउंड्स, जो साउंड्स उनके सेंसेस तक पहुंच जाते हैं, थ्रू साउंड्स दे कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स. एंड जब वो ये आइडेंटिफाई करेंगे लेटर्स को, आफ्टर दैट उनके सेंसेस इतने ट्रेन होते हैं कि वो खुद ब खुद समझ पाते हैं बातें, चाहे आप उनके साथ कन्वर्सेशन करो, इंटरेक्शन करो, या फिर उनसे कुछ ना कुछ आप करवाओ. सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू ट्रेन देयर रीडिंग कैपेबिलिटी, यानी जितना ज़्यादा हो सके उनमें रीडिंग कैपेबिलिटी डेवलप कर लीजिए. सो
इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ें कर सकते हो। पहला ये कि एटलीस्ट यू कैन मेक देम एबल टू रिकॉग्नाइज़ द लेटर, एटलीस्ट डू यू कैन मेक देम एबल टू लर्न phonetic sounds, and especially how to control a pen. If they will control the pen, they can handle anything in their own hands. So it means कि इससे उनका सेंस काफ़ी डेवलप हो जाएगा. Then she gives after that she gives technique of reading, technique of writing, और यू कैन से इसमें आप उनको टीचिंग करवाओगे हाउ टू राइट अ थिंग. इसका क्या पर्पस है राइटिंग? जब आपने उनको रीडिंग कंसेप्ट दिया, सो होल्ड जब उनके पेन का आ गया, सो दे कैन होल्ड अ पेन एंड दे कैन राइट एनीथिंग. सो उससे क्या होगा, उनके धीरे धीरे हेल्प हो जाएगी उनकी डेली एक्टिविटीज़ में. ये तो हुआ फीबल माइंडेड के लिए, लेकिन अगर आप नॉर्मल बच्चे के लिए भी देखोगे, उसकी नॉलेज या उसकी एजुकेशन डिपेंडेंट होती है रीडिंग और राइटिंग पे ही. सो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने उनको रीडिंग का कंसेप्ट दिया, फिर उसके बाद जब वो सीखे होल्ड पेन को करना, आफ्टर दैट दे कैन बी एबल टू राइट, क्योंकि उनके मसल्स उससे वीक नहीं होंगे, उससे उनके मसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और इससे उनको पता चलेगा एटलीस्ट वो मसल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं. एंड विद राइटिंग इनका सेंस जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सेंस ऑफ परसेप्शन स्ट्रॉन्ग होगा, उनकी रीजनिंग आ जाएगी, उससे क्रिएटिविटी आ सकती है. तो इसमें उनके तीन तीन बेनिफिट्स हो सकता है. Then after that we have to develop arithmetic sense in them, especially हमें arithmetic sense जो develop करना होता है बच्चों को, वो हम special purpose से करवाते हैं, क्योंकि हमें आम common बच्चों को भी देखिए arithmetic ज़्यादा ज़रूरी है develop करना. क्यों? reason क्या है? इससे उनका logical sense develop होता है, and without logic we cannot do anything. जब तक कि logical sense हमें ना हो, हमें reasoning ability develop नहीं होगी, हमें creativity develop नहीं हो सकती है, हमें कोई भी thinking ability नहीं आएगी. So it is the mathematics through which we can at least develop the logical sense. और logical sense पे अगर हमारी बाकी developments हैं, तो it's better कि हम पहले उनमें logical sense ही develop करें. So इस तरह से मारिया मॉन्टेसरी ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया एजुकेशन में, जो कि बेसिकली बना हुआ था फीबल माइंडेड के लिए. शी हैज़ वर्कड अ लॉट फॉर फीबल माइंडेड स्टूडेंट्स, एंड उसकी ट्रेनिंग की वजह से इट वॉज वेरी मच हेल्पफुल फॉर सच स्टूडेंट्स. एटलीस्ट दे आर एबल नाउ to do their life activities. So this is all about Maria Montessori's contribution. Hope you like it. Thanks for watching. Thanks a lot.